প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আগামী 2026 বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে বাংলার আকাশে আবারও ঘনিয়ে আসছে রাজনৈতিক ঝড়, যেখানে একটি রাজ্য, একাধিক স্বপ্ন আর একটি মাত্র ক্ষমতার মসনদ, যার আসন সংখ্যা 294, আবার ম্যাজিক ফিগার 148। 2026-এর নির্বাচন শুধু একটা নির্বাচন নয়, এটি একটি ক্ষমতার যুদ্ধ, এটি একটি অস্তিত্বের লড়াই, যেখানে খেলা হবে বনাম বাংলার পরিবর্তনের লড়াই। এই মুহূর্তের সবচেয়ে মূল্যবান প্রশ্ন হল, মমতা ব্যানার্জি কি পারবেন তার আধিপত্য ধরে রাখতে? তিনি কি পারবেন টানা চতুর্থবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হতে? নাকি বিজেপি এবার গত নির্বাচনের ফলকে ছাপিয়ে বাংলায় প্রথমবারের মতো সরকার গঠনের স্বপ্ন পূরণ করবে? ইতিমধ্যেই এবিপি আনন্দ তাদের ওয়েবসাইটে প্রথম জনমত সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক সকল প্রশ্নের উত্তর। প্রথমে আমরা কথা বলবো পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলা নিয়ে, যেখানে মোট আসন সংখ্যা 9। এই 9টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এই জেলায় 3টি আসনে জয়ী হতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এই জেলায় 6টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। এছাড়া কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। কোচবিহার জেলায় বিজেপিকে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করা হয় এবং ধারাবাহিকভাবে তারা এখানে ভালো ফল করে আসছে। এরপর কালিম্পং জেলায় মোট একটি আসন আছে। এই একটি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী ওই একটি আসন বিজেপির ঝুলিতে যেতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের এখানে খাতা খোলা কঠিন। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী কালিম্পংয়ে বিজেপি তাদের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে পারে। এরপর দার্জিলিং জেলায় মোট 5টি আসন আছে। এই 5টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 2টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 3টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। এছাড়া কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে। দার্জিলিং জেলায় বিজেপিকে বেশ শক্তিশালী বলে মনে করা হয়, তাই এখানে তারা সর্বোচ্চ 3টি আসন পেতে পারে। এরপর মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট 22টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 22টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এই জেলায় 12টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 7টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। এছাড়া কংগ্রেস এখানে 2টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। পাশাপাশি একটি আসনে অন্যান্য দলও দখল নিতে পারে। একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের নতুন দল কেমন ভোট পায় সেদিকেও নজর থাকবে গোটা বাংলার। এরপর জলপাইগুড়ি জেলায় মোট 7টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 7টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 2টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এই জেলায় 4টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। পাশাপাশি একটি আসনে অন্যান্য দলও দখল নিতে পারে। তবে কংগ্রেসের এখানে খাতা খোলা কঠিন বা প্রায় অসম্ভব। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলায় বিজেপিকে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। এরপর আলিপুরদুয়ার জেলায় মোট 5টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 5টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে মাত্র একটি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এই জেলায় 4টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। পাশাপাশি কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন, বরং বিজেপি পূর্বের ফলাফল অনুযায়ী তারা তাদের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে পারে। এরপর মালদা জেলায় মোট 12টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 12টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 7টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 3টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। পাশাপাশি কংগ্রেস এখানে 2টি আসন দখল করতে পারে। তবে এখানে অন্যান্য দলের খাতা খোলা বেশ কঠিন। একই সঙ্গে মালদা জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে বেশ শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। এরপর নদিয়া জেলায় মোট 17টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 17টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 7টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 10টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে।
তবে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী নদিয়া জেলায় বিজেপি তাদের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে পারে। এরপর উত্তর দিনাজপুর জেলায় মোট ৯টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ৯টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ২টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ৭টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। পাশাপাশি কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী উত্তর দিনাজপুরে বিজেপি এবার ৭টি বা তার বেশি সংখ্যক আসন দখল করে এই জেলায় তাদের শক্তিশালী অবস্থান জানান দিতে পারে। এরপর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোট ৬টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ৬টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ২টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ৪টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। অন্যদিকে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। এরপর হাওড়া জেলায় মোট ১৬টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ১৬টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ৯টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ৭টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। তবে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী হাওড়া জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে ব্যর্থ হতে পারে, যা তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এরপর হুগলি জেলায় মোট ১৮টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ১৮টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ৯টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ৮টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। পাশাপাশি কংগ্রেসও এখানে একটি আসনে জয়লাভ করতে পারে। তবে অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে। এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী এই জেলায় শাসক তৃণমূল দল এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যেতে পারে। এরপর উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় মোট ৩৩টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ৩৩টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ১৪টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ১৯টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। পাশাপাশি কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা বেশ কঠিন। এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের কাঙ্ক্ষিত আসনগুলি ধরে রাখতে ব্যর্থ হতে পারে। পাশাপাশি বিজেপি এখানে ভালো ফলাফল করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় টোটাল ৩১টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ৩১টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ১৮টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ১২টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। একই সঙ্গে অন্যান্য দলও এখানে একটি আসন দখল নিতে পারে। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূলের শক্তিশালী ঘাঁটি, তাই তারা এই জেলায় ১৮টি আসনের সঙ্গে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে পারে। এরপর কলকাতা জেলায় টোটাল ১১টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ১১টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ৭টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ৪টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। তবে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা বেশ কঠিন। এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে পারে। এরপর পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় টোটাল ১৬টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ১৬টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ৬টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ১০টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। তবে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। এবিপি আনন্দের জনমত অনুযায়ী এই জেলায় বিজেপি বেশ শক্তিশালী এবং আসন্ন নির্বাচনে তারা তাদের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে পারে। এরপর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় টোটাল ১৫টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই ১৫টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ৭টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে ৮টি আসন দখল করতে পারে।
একই সঙ্গে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচনে এই জেলায় শাসক এবং প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যেতে পারে। এরপর ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট 4টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 4টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে একটি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 3টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। তবে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। এরপর পুরুলিয়া জেলায় মোট 9টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 9টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 3টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 6টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। পাশাপাশি কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এই জেলাতে খাতা খোলা কঠিন। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী বিজেপি এই জেলাতে তাদের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে পারে। এরপর বাঁকুড়া জেলায় মোট 12টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 12টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 4টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 8টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। তবে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। এরপর পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট 16টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 16টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 7টি আসন দখল করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 8টি আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হতে পারে। পাশাপাশি কংগ্রেসও এখানে একটি আসনে জয়লাভ করতে পারে। তবে অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী এই জেলায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যেতে পারে। এরপর পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মোট 9টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 9টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 3টি আসনে জয় পেতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে 6টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। তবে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে তৃণমূলের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে। এরপর বীরভূম জেলায় মোট 11টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই 11টি আসনে এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস এখানে 6টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। অন্যদিকে বিজেপি এখানে 5টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। পাশাপাশি কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের এখানে খাতা খোলা কঠিন। তো বন্ধুরা, এবিপি আনন্দের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী আমরা পশ্চিমবঙ্গের মোট 294টি আসনে বছরের প্রথম জনমত সমীক্ষার ফলাফল দেখলাম। এই জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস 132টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি 153টি আসন নিয়ে তাদের সরকার গঠন করতে পারে। অন্যদিকে কংগ্রেস 6টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য দল 3টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ। यो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड। आज म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन में बात करेंगे दोस्तों। आज से करीब 800 शताब्दी में नेदरलैंड में पहली बार म्यूचुअल फंड का स्थापन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंडिया में आया था 1963 में, जो आरबीआई बैंक ने स्थापन किया था इंडिया में। तब नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, म्यूचुअल फंड का पहला नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो पहला अपना स्कीम निकला था 1964 में, US 64 नाम के एक स्कीम निकला था। ठीक है दोस्तों, आगे जाके 1978 में आरबीआई बैंक और म्यूचुअल फंड जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोनों अलग हो गए। उसका निगरानी हाल फिलहाल में अभी रखता है सेबी ने। सेबी हाल फिलहाल में उसका निगरानी करता है। सेबी तो स्टॉक मार्केट को भी निगरानी करता है। जो भी पॉलिसी है, जो भी कंपनी एंट्री करता है ना, सब कुछ जो भी रिसर्च करता है, मतलब वो सेबी देखता है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। तो अभी बात करके म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट करें दोस्तों। म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पहली बार आपको पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा आपको देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बहुत सारा बैंक सब अपना अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल के रखा है। ऐसे मोटा मोटा पकड़ ले तो SBI,
ICICI बैंक, HDFC बैंक, बड़े बड़े कंपनी पकड़ ले तो टाटा, बिरला, रिलायंस, जो भी कंपनी है सबका अपना अपना एसिड मैनेजमेंट कंपनी खोल के रखा है वो लोग। तो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करोगे, पूरा फुल्ली आपका ऊपर। देखो पहले बार तो इसको मोटा मोटा 3 आप पकड़ लो, जो म्यूचुअल फंड का बहुत सारा, लेकिन मैं 3 बोल रहा हूँ, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे ना, उसका पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सारा होता है, जैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड में बॉन्ड होता है, बहुत सारा होता है, जैसे जहाँ पर बहुत टाइम होता है ना, जो संसद में बिल पास नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपका मतलब पब्लिक का पैसा लेता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, देता है, वही बात है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है दोस्तों, जहाँ पे जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट है, उसमें आपका पैसा पूरा रिसर्च करके आपका पैसा जो है इन्वेस्ट कराता है, ठीक है। उसमें एक्सपर्ट है, वो पूरा रिसर्च करके आपका पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। उसमें जो पैसा आपका प्रॉफिट बनेगा, उसमें कुछ कमीशन पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी रखता है, ठीक है दोस्तों। कम से कम ज़्यादा नहीं है, 1-2% ऐसे कमीशन रखता है, बाकी पैसे आपको रिटर्न मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो वैसे पैसा तो सबके पास रहता ही है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, घर में रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं। उससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ना, रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फ़ायदा भी है, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में तो रिस्क बहुत है, इन्वेस्ट में बहुत टाका भी रिटर्न में मिलता है जब फ़ायदा होता है। तो आपको पहले ही बता देते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो हम लोग पहले ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो वही बात है, जो पैसा आप घर में रख देते हो, बैंक में रख देते हो, जहाँ पे बैंक में तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है, और घर में तो ऐसे ही पैसे रह जाता है, कुछ फ़ायदा तो होता नहीं, बस घर में बैठे बैठे रह जाते हैं। वही बात है, जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम है, एक नहीं बहुत सारे स्कीम है, जहाँ पे आप अपने पैसे सेव इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से फ़ायदा भी हो सकते हैं, तो फ़ायदा कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट जो रिसर्च है ना, जो इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कैसे आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। बहुत सारा पॉलिसी है, बहुत कुछ है, तो इस बारे में डिस्कस में और एक फुल वीडियो ले आएंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और एक गुड न्यूज़ बोलना है दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, वो मोनेटाइज होने के बाद फर्स्ट हमारा और डॉलर स्टार्ट होगा। तो जब हम लोग को पैसा पूरा आ जाएगा ना, तो फुल वीडियो ले आएंगे, कितना पैसा मिल रहा है, कितना आरपीएम मिल रहा है, कितना सीपीएम मिल रहा है, इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। यो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे पहले सबको गुड न्यूज़ देना है दोस्तों। गुड न्यूज़ यही है, हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया यार। आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए हमको चैनल मोनेटाइज हो गया। तो अभी रेगुलर वीडियो बनेंगे, जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट तो अभी बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस बारे में डिटेल्स में टॉपिक में बात करेंगे, क्या है, किसमें फायदा है, डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट आज से नहीं, करीब 400 साल पहले से स्टार्ट होता है। कितने साल पहले से? 400 साल पहले से स्टार्ट होता है। ये पहले डाच ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में वो नेदरलैंड में है, ठीक है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट का पहले देखो, कोई भी जो भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जहाँ का मतलब स्टॉक आप खरीदोगे ना, उधर का कुछ परसेंट आप ऑनरशिप है उस कंपनी का, ठीक है। तो उस कंपनी अच्छा ग्रो करेगा तो आपका भी फायदा है, लेकिन उस कंपनी का लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप कोई भी कंपनी एक स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कोई भी कंपनी आपने सोचा आज में मतलब हम एक बिजनेस करते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो किसी दोस्त से आप उधार लिए, तो आपको उसको बोला, देख भाई दोस्त, तू मुझे 10,000 रुपये दे, मैं 10,000 लगाता हूँ, जो भी मतलब जो भी फायदा होगा ना, वो दोनों मिलकर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आप तू 50% देगा तो मैं भी 50% दूंगा, तो बस 50-50 कर लेंगे। यही है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यार, आज से करीब 3-4 साल पहले जब कोविड-19 आया था, 4-5 साल हो जाए, हाँ हो गया सर, कोविड-19 आया था, तब सोच सकते हो कोविड-19 में जो सैनिटाइजर मास्क का डिमांड क्या बढ़ा था। पहले तो बहुत लोग जानते ही नहीं थे मतलब सैनिटाइजर मास्क इस बारे में। कोविड-19 में जो सैनिटाइजर कंपनी में कितना पैसा कमाया है, आप सोच सकते हो, बहुत ज्यादा। तो यही है भाई, जब भी कोई इमरजेंसी आ जाता है ना, ऐसे बहुत लोग सुनते हैं ना जी, बाप रे, थोड़ी पैसे लगाए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा उसको फायदा उनके कैसे मिल सकता है। क्योंकि कोई भी जब इमरजेंसी आता है, कोई भी चीज जब उसको मतलब होता है ना, जब उसको प्रॉफिट अचानक जल्दी से मिल जाता है, तो इमरजेंसी में आता है, उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। पहले बात तो
स्टॉक मार्केट सही है क्या गलत है। तो पहली बात तो आप पहले ऐसे, मुझे तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए मैं कंपनी को, जिसमें जिसमें कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा उस कंपनी का पूरा डिटेल्स निकालूंगा, उसका मतलब क्या है, उसका 5 ईयर्स का क्या चल रहा है, उसका बजट क्या चल रहा है, उसका मतलब कितना परसेंटेज उसका प्रॉफिट चल रहा है, सब कुछ मैं डिटेल्स निकालता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसे पहले बात तो आप भी शुरू में ऐसे इन्वेस्ट करने चाह रहे हो तो पहले कोई एक्सपर्ट से बात करो, ठीक है, उससे पहले अपना बात डिस्कस करो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। ऐसे कोई भी जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, लेकिन पहले उसका डिटेल्स पहले समझ लो, देख लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात हो रहा है जो कंपनी कैसे पता चलेगा तुम सही हो कि गलत हो, कंपनी को कैसे आप जान पाओगे, ठीक दोस्तों। अभी जो स्टॉक मार्केट में कंपनी को जो देखते हैं ना, पहले तो हर्षद मेहता वाला स्कैम तो पता है आप लोगों को, ऐसे पहले बहुत फ्रॉड होता था, लेकिन अभी नहीं फ्रॉड हो सकता, क्योंकि अभी जो कंपनी जो भी रजिस्टर होता है वो सेबी देखता है, ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा पॉलिसी, अभी यूट्यूब में तो आने वाला है वो पॉलिसी, क्योंकि सेबी ने तो नोटिस कर दिया, उन्होंने बोल दिया जो कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी लाइव जो वीडियो बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा चेतावनी है, वरना तो उन लोगों के चैनल भी डिलीट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सेबी ने तो ऐसे नोटिस दे दिया। तो वो भी अभी कंट्रोल करते हैं, मतलब वो शेयर मार्केट के जो भी है ना, कंट्रोल करते हुए देखते हैं कि कौन कौन कंपनी रजिस्टर हो रहा है। तो पहले बात तो दोस्तों, अभी जो शेयर मार्केट में पहले बात तो आप जो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, पहले अच्छे से देख लेना हो कंपनी को, ठीक है। मेरे राय में तो पहले आप कोई एक्सपर्ट से बात कर लो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो अभी शेयर मार्केट में थोड़ी सी बारे में डिटेल में बात कर लिया, अभी इसके बारे में और अच्छा वीडियो ले आएंगे, लेकिन आज इतने छोटी सी बस टॉपिक में बात कर ली, ठीक है। तो ये है हम लोग का यूट्यूब का जो जर्नी है, करीब 1 महीना पहले से हम लोग स्टार्ट किया था। आज हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं मेन टॉपिक है। देखो दोस्तों, आज जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होता है स्टॉक मार्केट, इस बारे में डिस्कशन में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज से करीब 400 साल पहले स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ था? 400 साल पहले ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो पहले शिप के दौरान कोई भी सामान एक्सपोर्ट करता था, ठीक है दोस्तों। तो उधर जो भी सामान है ना एक्सपोर्ट करता था, तो जनता को बोलता था कि आप लोग, हम लोग को जो सामान है इसमें कुछ पैसा लगाइए, हम लोग को जो फायदा होगा उसमें कुछ पार्सल आप लोग को देंगे, ठीक है। ऐसे करके पहले स्टार्ट हुआ था, करीब 400 साल पहले। अभी हाल फिलहाल में वो कंपनी नेदरलैंड में है। तो इंडिया में, हम लोग इंडिया में ना, शेयर मार्केट के बारे में क्या बताइए, सबसे सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त को आपने बोला है, दोस्त हम लोग मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास थोड़ा पैसा नहीं है, तो कुछ पैसा आपने उससे मांगा, भाई तू कोई पैसा मुझे दे दे, तो उसने आपको पैसा दिया, तो आपने बोला ठीक है, तू 50% ओनरशिप रहेगा, मैं 50% मतलब मेरा परसेंटेज रहेगा, तो जो भी फायदा होगा उसमें 2% मतलब जो भी फायदा हुआ ना उसमें 50% हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इससे सिंपल और सिंपल क्या आप बताइए यार। जैसे हम लोग इंडिया में तो देखो, स्टॉक मार्केट में तो एक हुआ था ना स्कैम, जो हर्षद मेहता ने किया था, मूवी किसने किसने देखा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट ना, तीनों में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, फिर बेच भी सकते हो, ठीक है। ये है एक बात। इसमें से आप देखो, पहले बात तो स्टॉक मार्केट में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, तो आप सोच दो जो उस कंपनी का आप कुछ परसेंट ओनरशिप हो, जैसे कुछ परसेंट आपने उसका शेयर खरीद लिया ना, तो आप उस कंपनी का ओनरशिप हो कुछ परसेंट के लिए, उसमें फायदा होगा उस कंपनी का तो आपका भी फायदा होगा, और उसमें घाटा होगा तो आपका भी घाटा होगा। तो हमेशा जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदो, कोई भी शेयर बेचो ना, तो आपको थोड़ा डिटेल्स में समझना चाहिए, जिस जिस अपने कंपनी को इन्वेस्ट करोगे ना उस कंपनी का एटलीस्ट 5 ईयर्स का तो मतलब हिस्ट्री देखना चाहिए, कैसे ग्रो किया, कैसे किया, सब कुछ देखना चाहिए, उसके बाद उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है दोस्तों। और क्या, अभी इंडिया में तो हम ये तो बहुत अभी स्टॉक मार्केट में हर कोई, मेरा दोस्त जो भी है सब ऐसे पैसा लगा रहे हैं। तो इस बार में क्या बोले यार, स्टॉक मार्केट में मतलब पैसा लगाने से पहले मेरे राय मतलब शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत कम सक्सेस होता है, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत कम। जैसे जब जब कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाता है दोस्तों, तब थोड़ा सपो मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्निंग कर पाता है। जैसे इमरजेंसी जैसे कैसे, जैसे आया था ना कोविड 19 में क्या होता बताओ। अचानक से कोविड 19 आया तो मास्क सैनिटाइजर का कितना ज़्यादा डिमांड हो गया था। जो कंपनी मतलब
अचानक से सोचो ना, जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेके ऐसे कमाते हैं, इमरजेंसी कुछ आ जाता है ना, तो उस टाइम में पैसा ज़्यादा कमा लेता है। जैसे मान लो कोविड-19 में आया, अचानक से सैनिटाइज़र दो, पहले तो सैनिटाइज़र मास्क के बारे में बहुत लोग जानता भी नहीं था, समझता ही नहीं था, कोड़ी के भर में कोई लेता भी नहीं था। तो कोविड-19 का आने के बाद हर घर-घर में सैनिटाइज़र, मास्क ऐसे हर घर में रहने लगा। तो वो जो भी कंपनी है ना सैनिटाइज़र, जो सैनिटाइज़र, मास्क बेचता था, वो कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ज़्यादा पैसा हुआ, वही है। सिंपल, सबसे सिंपल भाषा में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? तो वही, ये तो ऑब्वियसली बहुत लोग बोलते हैं जुआ है, बिल्कुल है। हमेशा जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, हमेशा उसका हिस्ट्री देख के इन्वेस्ट करो। ऐसे किसी दूसरे के बात में सुन के मत इन्वेस्ट कर लो, भाई उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसे ऐसे नहीं, पूरा हिस्ट्री देख लो।